Hi friends, how are you? In this video we are going to learn a poem and the title of poem is Silver, Standard 9. So before that I request you to like, share and subscribe my channel and get the notification of new videos related to your syllabus. Let's start the poem. First of all we have to know what is the theme of the poem. So Silver by Walter de la Mare is a 14-line sonnet which follows a rhyming pattern of A A B B C C D D E E F F and G G. The couplet rhyme scheme is used in the poem. Silver poem describes the impact that the silver light on the moon has on everyday objects and creatures existing within the darkened night. तो एग्जैक्टली थीम क्या है पोएम की? सबसे पहले हमें ये याद रखना है, ये जो पोएम है एक सोनेट है। सोनेट एक पोएम का टाइप होता है जिसमें 14 लाइन होता है, उस कैटेगरी की एक पोएम है। और इस पोएम में कपलेट राइम स्कीम यूज किया है। कपलेट राइम स्कीम मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन के लास्ट जो वर्ड्स होते हैं जब एक दूसरे को राइम करते हैं तो उसे कपलेट राइम स्कीम कहा जाता है। दो दो लाइन का स्टांजा बनाया जाता है। तो जब हम पोएम देखेंगे तो ये इजीली समझ में आएगा कि कपलेट किससे कहते हैं। जैसे कि राइम स्कीम में आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी, one letter is repeated there. Okay, means the rhyming words are making rhyming with each other in two poetic lines, and that's why we call it the couplet rhyme scheme. And after that we have to know what is exactly in this poem. So this poem describes the impact that the silver light of the moon has on everyday objects and creatures existing within the darker night. ये जो पोएम है ये क्या डिस्क्राइब करती है? सिल्वर लाइट मतलब मून का जो सिल्वर लाइट है उसका इम्पैक्ट डिस्क्राइब करती है। जो एवरीडे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें हमें हमारे डेली लाइफ में जो भी चीजें दिखती है तो उस पे मून का सिल्वर लाइट गिरने के बाद उसमें क्या क्या रिफ्लेक्शन होते हैं वो चीजें हमें इस पोएम में देखनी। तो बेसिक थिंग इज दैट दिस पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ मून and the countryside also. It means the whole poem is only talks about the silver light of the moon and the effect or impact of that silver light on the other objects. Only simple thing we have to keep in mind about the theme of the poem. So let's start the poem. This is the poem from your textbook, Silver. Slowly, silently now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that she peers and sees silver fruits upon silver trees. One by one the casement catch her beams beneath the silvery thatch. Cast in his kernel like a love, with paws of silver sleeps the dove. From their shorter coats the white breasts peep of doves in silver feathered sleep. A harvest mouse goes scraping by with silver claws and silver eye, and moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. Walter de la Mare. So, as previous we have talked about the couplet, then you can see here only two line stanza is made by the poet and the last words like moon, shoon, seas, trees, catch, touch, log, dog, peep, sleep, by, eye, gleam, and steam. These words are making rhyme with each other, and that's why we call it the couplet rhyme scheme.
दो लाइन का स्टांजा बनाया है और लास्ट के जो वर्ड्स है वो एक दूसरे को राइम कर रहे हैं। उसके लिए इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो कपलेट राइम स्कीम है। और जब हम देखेंगे पूरी पोएम तो ये लास्ट वर्ड हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे एक दूसरे को राइम करे और दो लाइन का किस तरह से क्या किया है स्टांजा बनाए। तो उसके लिए इसे दो दो लाइन के जो दो दो पोएटिक लाइन होते हैं और उसका एक स्टांजा बनाया जाता है तो उससे क्या कहते हैं कपलेट कहा जाता है जो दो दो लाइन है। और ये एक सोनेट है। सोनेट क्यों है क्योंकि इसमें 14 लाइन है और एक स्पेसिफिक राइम स्कीम भी इसमें यूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। This is the first stanza of our poem. So, slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. This is the first couplet, and second couplet is the this way and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. Okay, so first of all, we have to know that the two words are there, and the meaning is given there. Shuni, it means shoes. Peer, it means a look. Okay, so explanation is there. Slowly and silently, the moon spreads her silver light at night. She looks this way and that way carefully, and sees silver fruits upon silver tree. So this was the explanation of this two couplets. पहले पहले कपलेट में पोएट क्या कहना चाहता है? Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. क्या कहना चाहता है कि ये जो मून है, मून ने सिल्वर शूज पहने हुए और स्लोली साइलेंटली पूरी रात क्या करता है वॉक करता है। वॉक करते करते क्या करता है वो अपना सिल्वर लाइट स्प्रेड कर रहा है, ऐसे फैला रहा है। और दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज। और फिर उसके क्या कहता है कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, जिधर उधर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज। सिल्वर फ्रूट्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिल्वर ट्रीज पे। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आ गई। देखो जैसे कि सिल्वर जो मून का सिल्वर लाइट हो वो ट्रीज पे और ट्रीज के फ्रूट पे पड़ता है तो वो क्या होते हैं उनका रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है। तो वो फ्रूट का कलर ऑटोमेटिकली कैसे दिखाई दे रहा है सिल्वर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि उस पे मून के लाइट का इम्पैक्ट है। ओके, मून का जो सिल्वर लाइट है उसका इम्पैक्ट फ्रूट पे और ट्रीज पे दिख रहा है। उसके लिए वो पोएट ने क्या यूज वर्ड किया है सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज। ओके, second lines are there. One by one the casement catch her beams beneath the silvery thatch, cast in his canal like a log, with paws of silver sleeps the dog. Okay, difficult words. First of all we have to know that casement it means a window. Beam, we know that beam means array of light. Thatch it means roof made of grass or leaves, मतलब छप्पर जो होता है ना घर का जो ग्रास से घास से या पत्तों से बनाया जाता है उसे thatch कहते हैं। कैनल मीन्स डॉग शेल्टर, मतलब जहाँ पे कुत्ते का घर। log a piece of wood. paws means four arms of dog, मतलब कुत्ते डॉग के आगे वाले लेग्स जो होते तो उसे उसके लिए paws वर्ड यूज किया है। सो एक्सप्लेनेशन इज गिवन देयर। One by one the windows beneath the grass roofs catch her rays. The dog is lying in his kennel like a log of wood. His paws reflect the silver light of the moon. So in the first two lines, the poet just want to say, one by one the casement catch her beams beneath the silvery thatch. It means इसका मतलब क्या है? पोएट कहना चाहता है कि एक के बाद क्या हो रहा है ये जो सिल्वर लाइट्स है उसके जो बीम्स है वो क्या कर रहे हैं केसमेंट को कैच कर रहे हैं। और जो घरों के छप्पर होते हैं छत होते हैं उन्हें कैच कर रहे हैं, उनपे उसके रेज गिर रहे हैं और वो भी कैसे दिख रहे हैं अभी सिल्वरी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मून का सिल्वर लाइट उन पे गिरा है, विंडोज पे गिरा है और छतों पे गिरा है। उसके बाद तो दूसरी चीज क्या है कॉस्ट इन हिज कैनल। कॉस्ट ओके, मतलब ऐसे कॉस्ट का मतलब होता है अपने ऐसे चारों पैर ऐसे दुमड़ के बैठ जाना, ऐसे एक जगह पे करके बैठ जाना, उसका मतलब होता है कॉस्ट।
तो एक डॉग है, ओके, वो डॉग अपने कैनल में, कैनल मतलब कुत्ते कुत्ते का जो घर होता है उसे कैनल कहा जाता है, तो उसमें अपने पैर ऐसे अकुड़ के बैठा है, पूरे एक साथ जमा करके बैठा है, एंड विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग, और जब उसके घर में वो बैठा है तो उसके बस थोड़े से पॉज बाहर आ रहे हैं, उस पॉज पे सिल्वर लाइट गिरा है, तो उसका इंपैक्ट भी उस पर दिखाई दे रहा है। तो वो जो डॉग है, डॉग के पॉज भी कैसे दिख रहे हैं, अभी सिल्वर दिख रहे हैं, जो कि अपने कुत्ता अपने कैनल में है, अपने घर में है, लेकिन उसके जो थोड़े बहुत पॉज बाहर आए, फोर आर्म्स बाहर आए, उस पे थोड़ा सा जो सिल्वर लाइट पड़ा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो भी सिल्वर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा सिल्वर लाइट का इंपैक्ट यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहता है। सबसे पहले क्या, ये जो सिल्वर के सिल्वर लाइट है, सिल्वर लाइट मीन्स मून का जो सिल्वर लाइट है, उसके जो बीम्स है, उसके जो रेज है, सबसे पहले तो विंडोज पे गिर रहे हैं, उसके बाद जो ग्रास के रूप्स बनाए हुए गांव में, कंट्री साइड में ये दिखाई देगा आपको, जो ग्रास या पत्तों से बनाया हुआ घर होती है, उसे झोपड़ी कहा जाता है, उनपे क्या हो रहा है, इसका पूरा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, उनपे वो पूरा लाइट पड़ रहा है सिल्वर का, और वो भी सिल्वर दिखाई दे रहा है। सिल्वर लाइट मतलब कौन सा लाइट, मून का लाइट, चांद का जो लाइट है वो उस पे गिरा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या यूज किया है पोएट ने, कि एक कैनल है, उसमें कुत्ता बैठा है, और ऐसे बैठा है जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा उसमें है, और स्लीप कर रहा है वो, बस उस कुत्ते के आगे वाले जो पॉज है वो थोड़े बाहर है उस कैनल से, और उस पे भी मून का जो सिल्वर लाइट है उस पे गिरा है, और उसके पॉज भी आपको कैसे दिख रहे हैं, सिल्वर दिख रहे हैं। नेक्स्ट, from their shadow coat the white breast peep of dove in silver feather sleep. A harvest mouse goes scraping by with silver claws and silver eyes. Okay. Once again, there are two difficult words. Quote. This word is used for small shelter for birds. जो birds के लिए हम जो छोटा shelter बनाते हैं ना, इन शॉर्ट हम उसे बर्ड्स का घर भी कह सकते हैं। और क्रैम्पलिंग इसका मतलब रनिंग विथ क्विक एंड शॉर्ट स्लिप, मतलब थोड़े छोटे छोटे पैर ऐसे डाल के जल्दी जल्दी भागने की, चलने की कोशिश करना। सो explanation, in the shower shelter the doves are asleep, the silver moonlight reflects off their white chest, a harvest mouse goes running by taking small steps, its claws and eyes to reflect the silver light. So which thing we have to keep in mind in these lines? So by these lines we have to know that when poet used to see doves there, okay, dove, kabutar, dove, it means kabutar, and the silver light reflects on the chest of that doves, and after that the feathers of that dove looks a silvery feather because of the reflection of silver light. अब देखो क्या है, एक कोट है, कोट मतलब बर्ड का घर है, उस घर में एक डव है मतलब कबूतर है, और कबूतर की एक बस उसका जो चेस्ट है वो थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा है उस घर से, और उस पे भी क्या है, सिल्वर लाइट के रेज उस पे गिर रहे हैं, और वो कबूतर का जो चेस्ट है वो भी अब सिल्वरी दिखाई दे रहा है, उसके फीदर जो बाहर आ रहे हैं वो भी सिल्वरी दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्शन पोएट दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से रिफ्लेक्शन वहां पे है चांद के लाइट का। दूसरा देखो, हार्वेस्ट माउस, हार्वेस्ट माउस मतलब एक छोटा सा खेतों में पाए जाने वाला जो माउस होता है, चूहा होता है, उसे हार्वेस्ट माउस कहा जाता है, छोटी साइज वाला। गोज क्रैपलिंग, क्रैपलिंग का मतलब हमने देखा है रनिंग विथ क्विक एंड शॉर्ट स्टेप, जल्दी जल्दी अपनी छोटे छोटे पैर डाल के भागना, विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आईज। अब देखो उसके बाद पोएट कहना है, देयर इज अ हार्वेस्ट माउस, अ स्मॉल mouse is there, and that mouse is walking and running quickly and taking short steps, okay, but same time the silvery light reflects on the claws मतलब उसके जो नाखून, as well the eyes of that mouse, and after that the claws and eyes also looking silvery because of the reflection of silver light of the moon, okay.
तो इसमें क्या है, एक चूहा है और छोटे छोटे अपने पैर डाल के भागते भागते जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या होता है उसी वक्त चांद का, मून का जो सिल्वर लाइट है उसके क्लोज पे, मतलब उसके नाखूनों पे गिरता है, उसके आईज पे गिरता है, और उसके नाखून और आईज सिल्वरी दिखाई दे रहे हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन है उसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो, दिस इज द लास्ट couplet of this poem. And moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. Moveless, it means motionless. Okay, motionless, it means steam. Gleam, it means shine, and reed means river side plants. मतलब नदी के किनारे जो plants होते हैं उन्हें reeds कहा जाता है। देखो, तो explanation बस simple है, the motionless fish shine in the water of the silver stream near the silvery reeds. Okay, after that poet want to say that the light of moon reflects on the water body, and because of that reflection the motionless fishes are there, and that fishes also looking like a silvery fish because of the reflection of silver light. As well, the water also gleams there, water also shining because of silvery light. And lastly, the poet said there, by silvery reeds in silvery stream. And the riverside plants also looking like a silvery plants because of the reflection of silver lights spread upon them. तो लास्ट में क्या देखेंगे, लास्ट में पोएट ये कहना चाहता है कि जो चांद का या मून का जो सिल्वरी लाइट है वो वाटर बॉडी पे, पानी पे गिरा, पानी पे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, और उसी वक्त उसे क्या दिखता है, उस पानी में मोशनलेस मतलब स्टिल साइलेंट ऐसे फिश दिखाई दे रहे हैं, और वो पानी भी शाइन कर रहा है, ग्लीम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। और दूसरी चीज, जो रिवर साइड की जो प्लांट्स है वो भी सिल्वरी दिखाई दे रहे, क्यों, क्योंकि उनपे भी सिल्वरी लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। इन दिस वे वी हैव सीन दिस पोएम। So thank you guys, thank you for watching my video. Once again I request you to like, share and subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.